हाइजेंस प्रिंसिपल। कल हमने वेव, फिर वेव फ्रंट, फिर उसका रे क्या होती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट, ये इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। तो आज जो है वो पहले हम हाइजेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं। हाइजेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। नंबर वन, every point on the wavefront is the source of secondary wavelet. Every point on the wavefront is the source of secondary wavelet. मीन हर नुक्ते से फिर आगे छोटी छोटी वेव जो हैं वो इमिट होती हैं। और उसका दूसरा पॉइंट, we can locate the position of a wavefront after time t by joining the wavelets tangentially. We can locate the position of a wavefront after time t by joining the wavelets tangentially. अब इसको एक डायग्राम से ज्योमेट्रिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि लेट, ये सोर्स है, इससे स्फेरिकल वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और प्रोपेगेट कर रही हैं। हम एक पार्ट जो है कंसिडर करते हैं वेव का, तो जो पार्ट होगा उसी को वेव फ्रंट का नाम दिया जाएगा। अब हमने ये देखना है कि ये वेव फ्रंट ए बी जो एक पार्ट हमने कंसिडर किया है, ये टी टाइम्स के बाद कहाँ होगा। तो पहली बात जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो वेवलेट को रिप्रेजेंट्स करते हैं बाय द कर्व, और वो कर्व कैसे ड्रा करते हैं कि s इक्वल टू वी टी होता है, स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू c है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। इस डिस्टेंस के बराबर हम कैंपस जो है वो खोलेंगे स्केल बना के, और हम ये छोटी छोटी वेवलेट्स, ये जो डिस्टेंस होगा s इज इक्वल टू c इंटू टी है। तो ये छोटी छोटी वेवलेट्स हर पॉइंट से निकलेंगी और इन्हें हम जॉइन करते हैं टेंजेंशियली, एंड सी डी इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट ए बी आफ्टर टाइम टी। CD is the new position of the wavefront AB after time t. इसी असूल के ऊपर ये हाइजन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वगैरह को प्रूव किया। ये लोअर क्लासेस के अंदर पहले हुआ करता था बाकायदा इस तरह कर्व्स बना के। अगेन एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट सी डी इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये और आगे चली जाएगी टी टाइम्स के अंदर, तो इसका आगे अगर हम कर्व लगा देते हैं तो ये प्रोपेगेशन जो है वो इसी तरह प्लेस टू प्लेस आगे आगे ये वेव जो है वो ट्रैवल करती जाएंगी और करती जाएंगी। हाइजन प्रिंसिपल ही वेव थ्योरी का बेस है, बुनियाद है, और उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस को जब प्रूव कर लिया तो उसके बाद
اس نے انٹرفیئرنس کا آئیڈیا دیا. ہم آلریڈی بھی پڑھ چکے ہیں انٹرفیئرنس ساؤنڈ والے چیپٹرز کے اندر، لیکن اب انٹرفیئرنس لائٹ کا ہے، لہذا اس کی بات کرتے ہیں. تو ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انٹرفیئرنس آف لائٹ. انٹرفیئرنس آف لائٹ. تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں superposition of the waves, superposition of the waves, light waves coming from the coherent sources in such a way that at one point we get brightness, maximum brightness, and at the other we get darkness in the field of vision called interference of light, where we get brightness called constructive interference, which comes into play when crest of one wave overlaps the crest of other, and trough of one wave overlaps the trough of other. As a result, we get light wave of large crest and large trough. That is a wave of large amplitude. So brightness, where we get darkness, where we get darkness called destructive interference of light, which comes into play when the crest of one wave overlaps the trough of other, and vice versa. These two cancel their effect, and as a result we get darkness. Both constructive and destructive interference takes place at same time in the field of vision. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کمرے کے سارے بلب آن کر دیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہوں کہ دیکھیں برائٹنس بڑھ گئی ہے اور یہ کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہے، یا سارے بلب آف کر دیں اور ڈارکنیس ہو جائے اور آپ کہیں یہ ڈسٹرکٹیو. نہیں، یہ نہیں ہوتا. انٹرفیئرنس جب بھی ہوگا تو اس کے اندر کنسٹرکٹیو ڈسٹرکٹیو ریگولر انٹرولس کے اوپر ہمیشہ ہوں گے. اب ہے کنڈیشن آف انٹرفیئرنس کیا ہوگی. کنڈیشنز آف انٹرفیئرنس. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ،
sources should be coherent. Sources should be coherent मतलब क्या हुआ कि जिन सोर्सेस में से लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. दैट इज फ्रीक्वेंसी, amplitude of the light waves coming from two sources should be equal. और एक बात और है, जहाँ फ्रीक्वेंसी और हमने एम्पलीट्यूड की बात की, जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो एम्पलीट्यूड भी सेम होती है. टाइम पीरियड वगैरह उसको इसलिए नहीं लिखा जा रहा. एक चीज़ होती है फेज. दीज वेव्स फेज डिफरेंस, देयर फेज डिफरेंस should be 0, pi radians, pi, 2 pi, 3 pi up to n pi radians. अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी कि फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है और उनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस है 0 है, तो ये इन फेज कहलाएंगी. या उनका फेज डिफरेंस पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन है, 3 पाई रेडियन है, अप टू n पाई रेडियंस. तो ये है कंडीशंस फॉर दिस टर्म कोहेरेंट. सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट. और ये वो पॉइंट है जिस पे इतनी अरसा जो है, मतलब कम से कम कोई 1.5 सदी जो है वो ऐसी गुजरी है जिसमें साइंटिस्ट कामयाब नहीं हुए. उसको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में वो जो है हमेशा मार खा जाते थे. ज़ाहिर है जिस शख्स ने आइडिया दिया, मीन हाइजन ने, इंटरफियरेंस का, तो यकीनन वो एक्सपेरिमेंट भी तो करता ही होगा. उन एक्सपेरिमेंट्स के उनके जहन में क्या था कि लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ कि ये 2 बल्ब ले लेते हैं 100 वाट्स के, और आगे जो है स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे कि ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. ऐसे में वो हमेशा नाकाम हुए. तो इस वजह से कि 2 डिफरेंट सोर्सेज लाइट के जो हैं, जैसे मैंने कहा 2 बल्ब ले लें, तो वो कभी भी उससे जो लाइट इमिट होती है वो कोहेरेंट नहीं होती. अब कोहेरेंट लाइट सोर्सेज कैसे बनाएंगे, वो कौन कामयाब होगा, ये अगले स्टेप्स के ऊपर जो है वो जाके बात करते हैं. नंबर 2, these should be point sources, not the extended. बल्ब नहीं, ट्यूब लाइट नहीं, इन्हें पॉइंट सोर्स नहीं कहा जाता, बल्कि मसलन कागज़ के अंदर आप प्रिक करें पिन से और उसमें एक जो छोटा सा सुराख बन जाता है. कागज़ के एक तरफ अगर लाइट का बल्ब है और उसकी लाइट सिर्फ उस पिन पॉइंट से आगे अगर आ रही है, तो यकीनन इसको हम पॉइंट सोर्स का नाम देते हैं. नंबर 3, these should be very close. These should be very close. ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, बहुत नज़दीक होंगे, तब जो है इंटरफियरेंस पैटर्न जो है वो विजिबल होगा. अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर ये दोनों सोर्सेज को मैनेज करेंगे तो भी जो पॉसिबिलिटी है इंटरफियरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने की, वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाती. चौथा पॉइंट, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस path difference should be equal to 0,
लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा अप टू n लेमडा। जहाँ जहाँ वेव्स मिली हैं और दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और पाथ डिफरेंस 0 हुआ तो वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब पाथ डिफरेंस बना लेमडा के बराबर तब भी कंस्ट्रक्टिव होगा, 2 लेमडा पे भी कंस्ट्रक्टिव होगा, 3 लेमडा पे भी कंस्ट्रक्टिव, मीन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और लास्ट पॉइंट, फॉर destructive interference path difference should be equal to lambda by 2। 0 और lambda का मीन बनेगा, इसका मतलब है ये कंस्ट्रक्टिव दरमियान में डिस्ट्रक्टिव। 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, that is odd multiple of lambda by 2। ये है वो बात जिसमें हम ये इस कंडीशंस को पढ़ने के बाद पता चलता है कि हर दो कंस्ट्रक्टिव के दरमियान में एक डिस्ट्रक्टिव होगा। लेमडा और 2 लेमडा के दरमियान में 1.5 लेमडा होगा, दैट इज 3 लेमडा बाई 2। 2 लेमडा और 3 के दरमियान में होगा 2.5 लेमडा, मीन 5 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। तो हर दो कंस्ट्रक्टिव के दरमियान में एक डिस्ट्रक्टिव या हर दो डिस्ट्रक्टिव के दरमियान में एक कंस्ट्रक्टिव, और ये रेगुलर पैटर्न होगा और स्टेशनरी पैटर्न होगा, स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्वेबल होगा।